Hi, this is Shahabdin Pirzada, and you are watching my English YouTube channel. In today's video, I am going to introduce the most important topic. It's about conditional sentences. You must have heard about conditional sentences in the past, and you might have tried or made many efforts to learn them, but perhaps the tricks and the techniques that we use in explaining these things, you might have not learned them very well, or you might have missed some of the tricks. Actually, conditional sentences are most important to learn because they tell us about certain things that are going to happen in present or future, or that might have taken place in the past, but we need certain ways of expression to express those things systematically. Actually, conditional sentences. Conditional is a type of sentence. Condition is a type of sentence. Conditional is that is made up of an if clause, means condition, and main clause, means result. Here we have got a sentence that has got two parts. First part of the sentence is called if clause, and the second part is called main clause, as well as it's called result clause. It means that suppose a sentence, we begin with the sentence, if you work hard, you pass. If you work hard, you pass. This is condition. Which condition? Condition of working hard. If you fulfill this condition and you get the result. Means this is conditional part of the sentence, also called if clause. Mostly if clauses are called adverb clauses. Whatever happens in if clause, we get the result, and that's main clause. So main clause gives us result, and if clause gives us condition. Okay. Now there are four types of conditionals. Four types. I don't want to express them in a time or to try to understand these things at a time, because they will confuse you. But one by one we are going to explain each and everything systematically in a simple examples and simple expressions. First type is zero conditionals. First type of conditional is called zero conditional. इसमें अगर हम तर्जुमा करें, अगर ये हो तो वो होता है, इस तरह का काम हो तो उस तरह का काम हो जाता है, मीनिंग में इस तरह करेंगे हम. ठीक है. These sentences tell us about things that are generally true. वाकई इस तरह के जो सेंटेंस है वो हमें बताते हैं साइंसी हिसाब से जो चीज़ें होती हैं सिस्टेमेटिकली, जनरल ट्रुथ हम उनको कहते हैं, वो होती हैं. हैबिट्स भी होती हैं, जनरल ट्रुथ भी होता है. और एग्जाम्पल है, इफ यू हीट वाटर at 100 degrees centigrade, it boils. If you heat water at 100 degrees centigrade, it boils. It means this is if clause and this is main clause. Action condition, which condition? When will the water boil? If we heat it at what temperature? 100 degrees centigrade. This is condition. If this condition is fulfilled, what we get? Water starts boiling at 100 degrees centigrade. This is result clause, and we also call main clause, and this is if clause. This is also called if clause, is also clause of reason, adverb clause of reason. Okay. Second sentence, or moreover, here you look at this structure. If you heat water at 100 degrees centigrade, यहाँ तक it boils. अब ये जो क्लास है, ठीक है, ये भी सेंटेंस है. क्लास इज एक्चुअली स्मॉल पार्ट ऑफ सेंटेंस. इट हैज गॉट इट्स ओन सब्जेक्ट एंड वर्ब एज वेल. वी कॉल क्लास. बट हियर it boils. It means if you heat water at 100 degree centigrade, तो ये क्लास तो है, लेकिन ये डिपेंडेंट क्लास है, क्योंकि वो खुद मुख्तियार नहीं है. क्या होता है आगे?
बॉयल्स करता है। यानी जब तक हम ये अल्फाज इसको ऐड नहीं करेंगे तो सेंस नहीं बनता। इट बॉयल्स, ये तो सेंटेंस है क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब इसका अपना। इस तरह इफ यू स्पीक द ट्रुथ पीपल अप्रिशिएट यू। इफ यू स्पीक द ट्रुथ पीपल अप्रिशिएट यू। वाकई अगर आप सच बोलते हैं तो लोग क्या करते हैं? आपकी तारीफ करते हैं। ये तो हकीकत है। तो ये हो गया इफ क्लास। अगर मैं वैसे ही कहूं इफ यू स्पीक द ट्रुथ और आगे कुछ भी ना कहूं तो आप क्या कहेंगे? सर क्या होगा आगे? तो जब तक ये मैं सेंटेंस नहीं बोलूंगा तो इसका सेंस मुकम्मल नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो क्लास है वो डिपेंडेंट है और ये जो क्लास है पीपल अप्रिशिएट यू, ये मेन क्लास है जिसमें हमें रिजल्ट भी मिलती है और ये इंडिपेंडेंट क्लास भी है। इसके आगे when people smoke cigarettes their health suffer। when, एक बात और है, आप ये पूछेंगे सर यहां पर भी इफ है, यहां पर भी इफ है, ठीक है, यहां पर when क्यों? लेकिन if and when are quite interchangeable in case of zero conditionals। they are interchangeable, we can change their places। okay, when people smoke cigarettes their health suffers, but if I say if people smoke cigarettes their health suffers, same thing, कोई फर्क नहीं when और if का, दोनों की बात एक ही है। when people smoke cigarettes their health suffers, कब हेल्थ सफर करती है? जब सिगरेट पीते हैं। ओके ओके, इफ यू पुट आइस इन योर ड्रिंक इट मेल्ट्स। इफ यू पुट आइस इन योर ड्रिंक इट मेल्ट्स, बहुत इजी। यानी अगर थोड़ी सी बर्फ डालते हैं अपनी ड्रिंक में, क्या होता है? उसको वो पिघलती है, इट मेल्ट्स। तो एक्शन अगर ये होता है तो ये हो जाता है, बात सीधी है। ये एक्शन होता है, ये एक्शन हो जाता है, सीधी बात है। अगर ये एक्शन हम कर लेते हैं क्या होता है? ये एक्शन होता है। यूं समझ लें कि इफ क्लास में जो कंडीशन है उसकी फुलफिलमेंट होगी तो हमें रिजल्ट बिल्कुल मिलेगा। अच्छा, एक और बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं ये कंडीशनल जीरो कंडीशनल के हवाले से, वो ये है कि दोनों में जो टेंस है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। देखिए बहुत इजी, इफ आई गेट टू माई ऑफिस लेट, सिंपल प्रेजेंट टेंस, गेट टू माई ऑफिस लेट यानी पहुंचना। व्हाट हैपेंस? द बॉस गेट्स एंग्री। बॉस क्या होता है? उसको बहुत नाराज हो जाता है, बॉस गेट्स एंग्री। दोनों में टेंस कौन सा है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। एक्यूरेसी दोनों साइड से सिंपल प्रेजेंट टेंस में, लेकिन आगे जाके वेरिएशंस भी होती है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। अच्छा, वी कैन यूज व्हेन इन प्लेस ऑफ इफ बोथ आर इंटरचेंजेबल। पहले मैंने आपको बता दिया कि इफ की जगह पे हम व्हेन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों की प्लेस चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बट इफ क्लास एंड द मेन क्लास कैन बी मेड टू चेंज देयर प्लेसेस एज वेल। अच्छा, ये बात और नहीं आ गई, जैसे कि मैंने ये सेंटेंस लिखा है, देखिए कौन सा सेंटेंस चूज करते हैं हम। ये देखें, ये सेकंड नंबर पे देखने में आ रहा है, इफ यू स्पीक द ट्रुथ पीपल अप्रिशिएट यू। ठीक है, ये इफ क्लास है यानी डिपेंडेंट क्लास है, एडवर्ब क्लास है। पीपल अप्रिशिएट यू ये मेन क्लास है और ये रिजल्ट क्लास है। ठीक है, अगर मैं इनकी प्लेस चेंज कर लूं तो चेंज हो सकती है। किस तरह? पीपल अप्रिशिएट यू इफ यू स्पीक द ट्रुथ, बात एक ही है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आ जाए इस पे, इफ यू हीट वाटर एट 100 डिग्री इट बॉयल्स, तो वी कैन से वाटर बॉयल्स इफ यू हीट इट एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, बात एक ही है। यानी दोनों क्लासेस इफ क्लास और मेन क्लास की प्लेस हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा और मिसालें, एग्जाम्पल, इफ वी गो आउट इन द रेन आवर क्लोथ गेट सोक्ड, आवर क्लोथ गेट सोक्ड।
ठीक है, ये इफ क्लॉज है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, क्लोज गेट सोक्ड, यानी पानी से भीगे भीगे हो जाते हैं। आवर क्लोज गेट सोक्ड इफ वी गो आउट इन द रेन। बात एक ही है, प्लेस हमने चेंज कर ली, मीनिंग एग्जैक्टली सेम। बिफोर दिस आई वाज टेलिंग यू अबाउट द यूज ऑफ zero conditional sentence. Zero conditional sentence is really express truth or the general idea. Suppose if we press a button on, light comes on. If you boil water at 100 degrees centigrade, it boils. If you heat water at 100 degrees centigrade, it boils. So these are the realities or general truths, and we mostly use tense in simple present tense in both the classes. But here in this case of conditional sentence type 1, this type of sentence tells us about possible future conditions. There is possibility of happening some future conditions in case of conditional type 1 and its likely results. Yeah, note देखें खास, all the conditions in the if clause are possible, they are not hypothetical. यानी इसमें कोई imaginary condition नहीं है, hypothetical नहीं है, ये सारी conditions possible है वो हो सकती है। इसमें भी उसी तरह दो क्लासेस हैं, if clause और main clause। if clause क्या है, वो dependent clause है, adverb clause है, और main clause क्या है, यानी उसमें हमें result मिलती है। These things have been fully explained in my previous we can say while telling you about zero conditional. But here study these examples carefully. If you study hard, you will pass. अगर तुम मेहनत करोगे तो क्या होगा, पास हो जाओगे। If it doesn't rain tomorrow, अगर कल बारिश नहीं होती है क्या करेंगे, we will go to the picnic, हम जाएंगे पिकनिक के लिए। This is if clause, main clause. This is condition. If this happens, this will happen, right? Exactly. If this happens, this will happen. ये होगा तो वो भी होगा। If you hurry, you will catch the train. जल्दी करोगे तो ट्रेन पकड़ लोगे, you will catch the train. ये रूल है। We can also make the use of modal verbs like may, might, could, can in the result clause. ये मैं आगे चलकर आपको बता दूंगा। We can also use the present continuous tense or present perfect tense in the if clauses. ये जितने सारे if clause हैं, ये if clause, ये if clause और ये if clause, इनमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं कौन से टेंसेस, और भी टेंसेस हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मिले हुए हैं सारे, देखें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इन द इफ क्लास। एग्जाम्पल है, इफ यू आर एक्सपेक्टिंग, जैसे कंटिन्यूअस का इस्तेमाल है, इफ यू आर एक्सपेक्टिंग गेस्ट्स द फ्लैट विल नीड अ गुड क्लीन। लेकिन अगर हम ये कहें कि if you expect guests, the flat will need good clean, same thing. Then if you have finished your computer, I will take it. यानी अगर आपने कंप्यूटर का काम पूरा कर दिया है तो मैं इसको ले जाता हूं, I will take it. अगर हम कहें, देखें, if you haven't got TV, you can't watch the film. अगर आपके पास टेलीविजन नहीं है तो आप फिल्म नहीं देख सकोगे। ये इफ क्लास, ये रिजल्ट क्लास, राइट। रूल है, द इफ क्लास यूजुअली कम्स फर्स्ट बट इट कैन कम आफ्टर द मेन वर्ब, मेन क्लास। ये हमेशा इफ क्लास शुरू में आता है, लेकिन कभी कभी ये होता है कि मेन क्लास की जगह पे भी आ सकता है। एग्जाम्पल ले लें, मिसाल की, ये इफ इट डजंट रेन टुमारो वी विल गो टू द पिकनिक। We can say we will go to the picnic if it doesn't rain tomorrow. Same thing. Now we are dealing with conditional type 2 sentences, right? These sentences express hypothetical conditions but not impossible to happen. वाकई
ये जो सेंटेंस है इनके ताल्लुक ऐसे माहौल से, कंडीशन से होता है जो कि हाइपोथेटिकल हैं, इमेजिनरी हैं, जो कि नहीं हो सकती हैं, लेकिन ये इम्पॉसिबल भी नहीं है, हो भी सकती हैं। ये इसमें थोड़ी सी मतलब फ्लेक्सिबिलिटी है कि ये हो भी सकती है, लेकिन मोस्टली नहीं होती। ओके, इफ आई एट केक आई वुड गेट फैट, ये इसका इफ क्लास है। देखें सिंपल पास्ट में इफ क्लास में वर्ब जो होगा सिंपल पास्ट में होगा, इसके बाद हम वर्ड इस्तेमाल करेंगे, लेकिन कभी कभी हम कुड भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वुड कुड दोनों का इस्तेमाल हो सकता है। इफ आई एट केक आई वुड गेट फैट, और ये क्या, अगर ये होता तो वो हो जाता। क्या मीनिंग निकालेंगे इसकी, अगर मैं केक खाता तो क्या हो जाता, फैट हो जाता, यानी मोटा हो जाता है, फैटी हो जाता है। ठीक, इफ आई लिव्ड इन ऑस्ट्रेलिया आई वुड विजिट यू, मीनिंग आप खुद निकाल सकते हैं। फॉर्म कौन सा इस्तेमाल करते हैं, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यहां पर वुड इस्तेमाल करते हैं। ठीक, इसके बाद है इफ आई वन द लॉटरी, अगर मेरी लॉटरी निकलती। ठीक है, इफ आई वन द लॉटरी 3 crores आई वुड बाय जैपनीज कार, क्या करूंगा, यानी क्या कर लेता, उसे जैपनीज कार खरीद कर लेता, लेकिन क्या मेरी लॉटरी निकली है, हाइपोथेटिकल। इफ यू लर्न इंग्लिश यू वुड इजीली गेट अ जॉब, अगर आपको अच्छी इंग्लिश आती तो क्या होता, आपको जॉब मिल सकती थी या मिल जाती। ठीक है, ओके, इफ आई वर यू आई वुड हायर टैक्सी, अगर मैं आपकी जगह पे होता क्या करता है, टैक्सी किराए पे लेता, हायर टैक्सी। दीज आर इमेजिनरी और हाइपोथेटिकल कंडीशंस, वाकई ये तस्वराती कंडीशंस हैं, इमेजिनरी कंडीशंस हैं, लेकिन 100% इम्पॉसिबल भी नहीं है, इनमें फ्लेक्सिबिलिटी है। आगे, इफ ही हैड मच मनी he wouldn't spend it extravagantly। ठीक है, दूसरा नंबर, इफ आई वर द एजुकेशन मिनिस्टर आई वुड ओपन नेटवर्क ऑफ स्कूल्स, सपोज मैं एजुकेशन मिनिस्टर नहीं हूं और क्या कहता हूं, इफ आई वर, अगर मैं होता। हालांकि यहां पर हम वर्क का इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्योंकि यहां पर कंडीशन है, ये क्या है, कंडीशन है, इस वजह से हम वर्क का इस्तेमाल करते हैं। इफ आई वर द एजुकेशन मिनिस्टर आई वुड ओपन नेटवर्क ऑफ स्कूल्स, बहुत सारे स्कूल का नेटवर्क खोल लेता, लेकिन मैं मिनिस्टर नहीं हूं। नाउ वी आर डीलिंग विथ कंडीशनल सेंटेंस टाइप 3। एक्चुअली 4 टाइप्स ऑफ कंडीशनल, जीरो कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल, जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल एंड थर्ड कंडीशनल। Conditional sentence type 3. These sentences show hypothetical conditions in the past which is impossible to happen। वाकई ऐसी कंडीशन हालत पास्ट में होती है जिसको हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते किसी भी सूरत में, क्योंकि वो वक्त गुजर चुका है, बीत चुका वो जमाना, अब कुछ नहीं हो सकता। वी कॉल थर्ड कंडीशनल, उसमें मोस्टली जो है मेन क्लास में कुड वुड का इस्तेमाल करते हैं और पहले क्लास में पास्ट का इस्तेमाल करते हैं, सिंपल पास्ट का। ठीक है, सच सेंटेंसेस शो रिग्रेट, वो हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं जब पछतावा करना पड़ता है किसी चीज का। मिसाल के तौर पर अगर मैं मेहनत कर देता तो शायद मैं आज डॉक्टर बन जाता था, लेकिन वो तो जमाना ही गया, ना मेहनत ना डॉक्टरी ना मिल सकती है। एग्जाम्पल है, इफ ही हैड स्टडीड वेल ही वुड हैव बीन अ डॉक्टर। सेम एग्जाम्पल, इफ ही हैड स्टडीड वेल ही वुड हैव बीन अ डॉक्टर। यहां पर सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं हैड के साथ, यानी पास्ट परफेक्ट, और सिंपल पास्ट हम इस्तेमाल करते हैं उसमें कंडीशनल टाइप 2 में,
ये 3 है. Okay. If he had informed me earlier, I could have helped him. क्या मैं अभी मदद कर सकता हूँ? नहीं, उसने इतलाई नहीं की, वो टाइम पास हो चुका है. यानी अगर वो मुझे पहले बता देता तो मैं उसकी मदद कर पाता था, अब नहीं कर सकता. ठीक है. If I had my mobile yesterday, I could have contacted you. अगर मेरे पास मोबाइल होता कल तो क्या करता? I would have contacted you. मैं आपसे कांटेक्ट कर सकता था, लेकिन मोबाइल ही नहीं था. अच्छा, अब सारे कंडीशनल्स हैं. देखें, ये जीरो कंडीशनल जहां से मैंने स्टार्ट किया, इसमें एक्सट्रीमली लाइकली है पॉसिबिलिटी, एक्सट्रीमली लाइकली. ठीक है. मिसाल के तौर पर, इफ इट रेन्स वी शैल नॉट गो आउट फॉर पिकनिक. बिल्कुल पॉसिबिलिटी. यानी इफ इट रेन्स वी डोंट गो आउट. इफ वाटर इज हीटेड it boils at 100 degrees centigrade. If you press the button, light comes on. Right? First conditional, possible. If you work hard, you will pass. If you borrow me money, if you lend me money, I will borrow you. Or I will give you back after some days. Means there is action. Second conditional, अनलाइकली बट स्टिल पॉसिबल. यानी इसमें यह कि इम्कान कम है लेकिन है ज़रूर. मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी, इफ़ आई एट केक आई वुड गेट फैट. ठीक है. तो इसमें क्या है? इफ़ आई एट केक आई वुड गेट फैट. इफ़ यू टोल्ड मी अर्लियर आई कुड हेल्प यू. ये हो सकता था पास्ट में, इसमें थोड़ी गुंजाइश है. थर्ड कंडीशनल बिल्कुल इम्पॉसिबल है. इसमें किसी भी किस्म की जो है कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि वक्त बीत चुका है और हालात चेंज नहीं हो सकते. बिल्कुल. सो दिस वाज ऑल अबाउट लर्निंग ऑल अबाउट conditional sentences, their types, their examples. I have mentioned different examples in different situations only to make you understand the real possibility of using these sentences in different contexts. They help you not only in expressing present situation, also future situations as well. I hope you might have understood all the sentences very clearly, and you might take great benefit by watching these videos. So please keep on watching, share it, like it. Thank you very much.